میں پورے عالم اسلام کو یہ خوشخبری دیتا ہوں، تل اویو اور حیفا سٹی کے نیچے یہ ٹنلز اس طرح موجود ہیں جس طرح انسان کے جسم میں شریان ہیں، اور وہ لبالب بھری ہوئی ہیں اسلحے سے۔ تو یہ جتنا سہونی ہے یہ ڈائنامائٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نہ آسمان سے میزائل آئے گا نہ آبدوز سے آئے گا، صرف ایک بٹن دبے گا اور یہ غرق ہو جائیں گے، ادھر ہی تدفین ہو جائے گی ان کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے 72 گھنٹے کے اندر مسجد اقصی فتح ہوگی اور یہ سہونیوں کا قبرستان بنے گا حیفا سٹی اور تل ابیب۔ اگر انہوں نے مسجد اقصی کو چھوا بھی نا تو دنیا تباہ ہو جائے، ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان آرام سے بیٹھ کے سکون سے تماشا دیکھیں، ہم کافی ہیں انشاءاللہ۔ اور 15 سال سے ہم بھی یہاں میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بھی وہ ماریں گے، کیونکہ مسئلہ اگر وہاں پہ حزب اللہ ہے تو پاکستان میں ISI بھی ہے۔ کیا رے بھیک منگیا؟ سب سے بڑی تکلیف کس کو ہے اس وقت اسرائیل کی دنیا میں؟ امریکہ کو، انڈیا کو۔ اگلی ریسرچ میں دوں گا کہ اس کو اصل تکلیف کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ 2 سال میں ہمیں بھکاری کہتا ہے نا انڈیا، میں 2 سال میں دکھاؤں گا یہ ہم سے ہی بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ تو دوستو ان جاہل بھیک منگے پاکستانیوں کو کرنا تو کچھ ہے نہیں، بس بک بک کرتے رہنا ہے اپنے مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھ کے، اور جذبے والی قوم ہے، ہمت تو ہے نہیں ان میں۔ یہ کچھ مطلب جیسے کہ اسرائیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا پھر بھارت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی نہ تو یہ اسرائیل کے سامنے یہ بک بک کر سکتے ہیں جس حساب سے یہ میڈیا میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، نہ بھارت کے سامنے کر سکتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کو اگر ان لوگوں نے بھارت کے سامنے یا پھر اسرائیل کے سامنے اس کی کچھ برائی کر دیا، کچھ بول دیا اس کو، تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ باقی دوستو چلتے ہیں سیدھی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ ظاہر آج دنیا کی نظریں اس بات پر ہیں کہ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہر کسی ٹاپک پر جو اس حوالے سے بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب جب میرے پاس آتے ہیں کوئی عجیب و غریب بات کہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جنگ نہیں ہو رہی ہے، ایک نقطے پہ رکی ہوئی ہے۔ یہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ نقطہ تو کوئی نہیں ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ عالمی جنگ کے 4 مراحل ہیں، یہ دوسرا مرحلہ چل رہا ہے، اس کے بعد تیسرا اور چوتھا بھی موجود۔ چوتھا جو ہے وہ عالمی جنگ ہے، ابھی آپ دوسرے اسٹیپ پر ہیں۔ اچھا، فلسطین جو ہے یہ دوسرے اسٹیپ پر، ابھی جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ پہلا قاسم سلمانی کی شہادت تھی، وہاں سے یہ جنگ کا آغاز ہونا تھا، لیکن یہ اس جنگ کا مقصد کسی شخص کی شہادت کا بدلہ لینا نہیں تھا، ٹھیک ہے، دین ایمان کا مسئلہ تھا۔ یہ خراسانی لشکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر یہود ہنود اور نصارہ ساتھ آ جائیں مسلمانوں کے اہل ایمان کے سامنے، مذہبی جنگ وہی ہوتی ہے۔ یہ تو مسجد اقصی قبلہ اول کی آزادی کی جنگ ہے۔ ہاں، یہ دوسرا قدم ہے عالمی جنگ کی طرف، اس کے بعد تیسرا چوتھا۔ بہرحال 2 نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، ایک میزائل کا خالق ٹیپو سلطان شہید، اور نمبر 2 دنیا کا 8واں عجوبہ سامنے آنے والا ہے ٹنلز، اور اس کے موجد ہیں قاسم سلمانی شہید۔ یہ ان کا ذہن ہے، انہوں نے ہی بنایا ہے۔ جو کہتے ہیں یہ ٹنل صرف 500 کلومیٹر پہ، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس ٹنل کی کل رقبہ جو ہے 7200 کلومیٹر ہے۔ اوکے، اور یہ دیکھیں غزہ کو اگر آپ دیکھیں تو سراؤنڈنگ کے چاروں طرف سرویلنس سے، مانا کوئی گھس سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، تو 40,000 حماس کے نوجوان کیسے لبنان پہنچے جہاں پہ ان کی تربیت کی حزب اللہ نے اور قاسم سلمانی نے۔ یہ جتنی تربیت اور ٹیکنالوجی، پتھروں سے لے کے ٹیکنالوجی حماس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ ایران اور حزب اللہ کی بدولت ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ ٹنلز شام سے لبنان میں 2006 میں جب ان کو نکالا، حزب اللہ کے ہاتھ میں پورا لبنان آیا، تو یہ ٹنلز کا جال بچھا۔ اچھا، کیونکہ سرویلنس تھی مواصلاتی سیاروں سے، ٹریلینز آف ڈالر کو سمندر میں غرق کر دیا حزب اللہ نے، وہ ٹنلز بنا کے قاسم سلمانی صاحب نے۔ اور یہ ٹنلز کی وجہ سے ہی لبنان نے حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ جیت کے اس کو دھکیل دیا۔ یہ ٹنلز ہی وہاں سے کنٹینیو ہوتی ہوئی خود تل ابیب کے نیچے ہیں، نہ صرف غزہ میں ہیں، تل ابیب کے نیچے ہیں، حیفا سٹی کے نیچے ہیں، اشکلون کے نیچے ہیں، اور وہاں سے ہوتی ہوئی غزہ آ رہی ہیں۔ تو یہ ٹوٹل ٹرانسپورٹیشن جو بھی مجاہدین کی ٹریننگ کے لیے ہوئی اس ٹنلز کے ذریعے ہوئی۔ اچھا، اور اب تل ابیب اور حیفا کے، میں پورے عالم اسلام کو یہ خوشخبری دیتا ہوں، تل ابیب اور حیفا سٹی کے نیچے یہ ٹنلز اس طرح موجود ہیں جس طرح انسان کے جسم میں شریان ہیں، اور وہ لبالب بھری ہوئی ہیں اسلحے سے۔ تو یہ جتنا سہونی ہے یہ ڈائنامائٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نہ آسمان سے میزائل آئے گا نہ آبدوز سے آئے گا، صرف ایک بٹن دبے گا اور یہ غرق ہو جائیں گے، ادھر ہی تدفین ہو جائے گی ان کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے انہی ٹنلز کے اندر بھرے ہوئے اسلحے میں ہی مارے جائیں گے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور میں یہ کھل کے بتا رہا ہوں، کوئی آر نہیں ہے۔
देखें ये जंग रुकी हुई है। हाँ, मैं ये वो नुक्ते वाली बात जो आप कह रहे थे ना, वो क्या है? मैं इधर ही आ रहा हूँ। ये जंग रुकी हुई है और ये इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं। ये जंग क्यों रुकी हुई है? अभी तक हमास ने, हिजबुल्लाह ने रिटेलिएट कर रहे हैं, जंग नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ दिफा कर रहे हैं। 29,000 मकानात और इमारतें हमास में तबाह हो गई। इसमें कम से कम अगर लोग होते ना, हलाकतों की तादाद 2 से 3 लाख होती। इसमें टोटल शहादतें हुई हैं 500 से 600। बाकी जो इसराइल ने अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे में खाली करो, वो जो निकल के जा रहे थे रफा बॉर्डर की तरफ, उनको मारे। ठीक है ना। इस वक्त रफा बॉर्डर के ऊपर 12 लाख फलस्तीनी माएँ बहनें औरतें बैठी हुई हैं, जिसको मिस्र सरहद नहीं खोल रहा। पाकिस्तानियों, अगर तुम आवाज उठाना चाहते हो, आलम इस्लाम तुम आवाज उठाना चाहते हो, ना अक़वाम मुत्तहिदा से उठाओ, ना तुम इसराइल से उठाओ, ना सऊदी अरब से उठाओ, किसी से नहीं उठाओ। तकाजा होना चाहिए जनरल सीसी से कि फौरी तौर पर रफा का बॉर्डर खोलो, बॉर्डर खोलो, ताकि ये माएँ बहनें रफा के बॉर्डर से अंदर आए। अगर तुम्हें शक है कि इसमें हमास का मिलिटेंट जा सकता है या हमास का हुर्रियत पसंद जा सकता है, तो तुम्हें मैं बताऊं, हमास का एक भी जवान इसमें औरतों में नहीं जाएगा। तुम सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए अलाउ करो। इधर आखिरी औरत और बच्चा अंदर रफा बॉर्डर में जा रहा होगा, उधर जंग का आगाज होगा। इस जंग का दौरानिया सिर्फ 72 घंटे, 73वां घंटा नहीं होगा। 72 घंटे के अंदर मस्जिद अक्सा फतह होगी और ये सहूनियों का कब्रिस्तान बनेगा, हैफा सिटी और तेल अवीव। लेकिन ये है आवाज जिसको उठाना है। चंदे नहीं मांगो, तुम्हारा चंदा नहीं पहुंच सकता। हाँ। ये कंबल और अद्वियात ना भेजो। अभी तक सिर्फ 20 ट्रक गए रफा बॉर्डर से गाजा के अंदर। इसके 3000 ट्रक लाइन में खड़े हैं, उनको कोई एड नहीं पहुंच रही। तुम अगर तकाजा करना चाहते हो तो मुर्सी शहीद के कातिल जनरल सीसी, जो के मरहब सानी है, उससे और मिस्री अवाम से तकाजा करो, नालो मर्दों को, औरतों और बच्चों को अलाउ करो। अगर रिटेलिएशन इन 12 लाख औरतों और बच्चों पे हो गई तो ये कमर टूट जाएगी हमास और हिजबुल्लाह की। ये रिटेलिएशन इधर होनी है, इस वजह से जंग रुकी हुई है। ये तकाजा करो। जिस दिन ये जाएंगे, बैतुल मुक़द्दस की फतह की मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। 72 घंटे में ये जो अमरीकी सदर आया, अपने लाखों फौजियों के साथ असले लेके, जो बरतानवी वजीर आजम आया असले के साथ, जिसको टेलीकास्ट किया खुलेआम, वहां पे इस वक्त 3 लाख से ज्यादा बरतानवी, अमेरिकन, इटालियन, फ्रेंच और जर्मन फौजी पहुंच चुके हैं। हाई ऑफिशियल, हाई मिलिटेंट, जो 3 लाख इसराइली फौजियों के साथ वहां मौजूद हैं। यही कब्रिस्तान बनेगा और यहीं से आलम इस्लाम की हाकमियत का आगाज होगा। इसी जंग के बाद डॉलर गर्क हो जाएगा। दिसंबर के बाद आप डॉलर को गर्क होते हुए देखो फैसल साहब। मैंने इधर तकाजा करो। ये है तकाजा। मैं वापस उसी जवाब पर आ रही हूँ। जब आपने मिस्र की बात की, मेरे जहन में बिल्कुल ये सवाल था कि वो बॉर्डर का ना खुलना एक बहुत बड़ा मसला है। आपको क्या सबसे बड़ा मसला यही है? यही मैं कह रही हूँ ना। अभी तक सिर्फ रॉकेट फायर हो रहे हैं। उस रॉकेट की कीमत कितनी है? $250। उसको आयरन डोम रिटेलिएट कर रहा है, रोक रहा है, उसकी कीमत कितनी है? $1.5 लाख। तबाह तो ये हो रहे हैं। अभी तक इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि आयरन डोम को इन रॉकेटों से ख़त्म कर दो। उनको भी पता है इसको आयरन डोम रोकेगा, 2-4 गिर जाएंगे। ये सिर्फ इसको आप सिर्फ एक इसको इंडिकेशन कह सकते हैं। अभी जंग नहीं हुई। जंग के लिए 25 लाख नौजवान लबनान की सरहद में तैयार बैठे हैं। जो हजदल शाबी के हैं, जो अंसारुल्लाह यमन के हैं, जो ज़ैनबियून हैं, जो फातमियून हैं, जो अल-कुद्स ब्रिगेड है, जो फ़लस्तीन इस्लामी जिहाद के साथ बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तारीख के अंदर हम ये कहते हैं, मुसलमान तुम जाओ ना जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम बैठो अपने महलात के अंदर और खुश गप्पियां करो। 2 तकाजे ना करना। 2 कौमी हुकूमतों का क़याम कतन कबूल नहीं है। ये फैसला फ़लस्तीनियों का है, हमास का है। वो फैसला करेंगे कि इस सरजमीन पे सहूनियों ने रहना या नहीं रहना। हम उनके फैसले को फॉलो करेंगे। मस्जिद अक्सा का कंट्रोल उन्होंने संभालना है आगे। तो आप इस तरफ से असल तकाजे की तरफ ले आए इस कौम को कि वो मिस्र से तकाजा। मैं यही आपसे पूछ रही थी कि आप देखें मिस्र के साथ जब तक ये नहीं होगा जंग नहीं शुरू हो सकती। ये मैं आपको बता दूं, इन औरतों और बच्चों का जब तक वहां से दाखिल नहीं होंगे, ये जंग नहीं हो सकती। मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है, आलमी ताकतें ये बॉर्डर नहीं खोलने दे रही। उनको भी पता है कि जिस दिन ये औरतें और बच्चे चले गए, उसी दिन जंग का आगाज होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। आप दुआ करें, पंजतन पाक से दुआ करें, ये सेफ रहे।
ये अच्छा, उन्हीं की माएँ बहनें हैं वो जो जिहाद। लेकिन ये जो मिस्र पे दबाव है, क्या आपको लगता है कि मैं जा रही हूँ मिस्र में कौन सा दबाव है? नहीं, मैं कह रही हूँ हम क्या मिस्र पे पार्ट दबाव। ऑफ इसराइल। अरे सर, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान बहसीत और दीगर और ममालिक, अरब ममालिक जो हैं, अब तक ये आवाज उठाई नहीं किसी ने, बात ही नहीं की नहीं की। अच्छा, बात। इसको तो गुप्त किया हुआ है। अच्छा, अब असल चीज तो ये है। हाँ जी, अब मैं इस सवाल पे ब्रेक का कादर है, लेकिन मैंने आपसे हल भी पूछा है। हल है आपके पास कोई कि इन सारी चीजों का इस वक्त आपको क्या हल नजर आ रहा है? क्योंकि ताकत के जोर पर तो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, देखें इस वक्त और उनकी कहीं ना कहीं मदद भी हो रही है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि तमाम ब्लॉक्स इसराइल पहुंच चुके हैं, और इसराइल पूरी तरह से मुसल्लह है। अब ये देखना है कि इनका मदद और इनका साथ कौन दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको देखें, मैं अगर कहूंगा ना तो वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा, आप कहेंगे काबिल कबूल नहीं होगा। आए हरीफ और हलीफ से पूछते हैं कि उनके मददगार कौन है और उनके दुश्मन कौन है। ठीक है, ये USB है, ये लगाएं, इसके अंदर थोड़ा सा आपको जहमत करनी पड़ेगी। इसके अंदर ये खुद बताएंगे हलीफ और हरीफ, हमास बताएगी और इसराइली प्राइम मिनिस्टर बताएगा कि उसको मसला किससे और उनके मददगार कौन है। ब्रेक ले लेती हूँ ना, ब्रेक। इजराइल तहिया किए बैठा है कि वो किसी भी तरह से पैलेस्टाइन या फलस्तीन के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं कि वो सफ़े हस्ती से उसको मिटाना चाहता है, लेकिन जो गुफ्तगू अभी सेंटर फैसल रज़ा आबिदी साहब कर रहे हैं कि जो टनल्स बनी हुई हैं वो शायद खुद एक डायनामाइट के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी ब्रेक पे जाते हुए इन्होंने मुझे एक USB दी है और मैंने सवाल इनसे किया था कि इसका हल क्या है, तो आपने उस हल के लिए मुझे USB दी है। कौन सा है कौन नहीं, इसका फैसला मैं आप नहीं करेंगे। हाँ। इसका फैसला दो मुताहरिब ग्रुप है ना। हाँ। हमास जिनके सरबराह इस्माइल हानिया और सेहूनी दहशतगर्द जिसका सरबराह है बेंजामिन नेतन्याहू, उन दोनों से सुन लें कौन है। बहुत सारी चीजें शायद वाज़ेह होती हैं, लेकिन दिखाने का मकसद ये होता है कि ईरान ने जिस तरह रिटेलिएशन में जवाब दिया दुनिया को कि हम अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं फलस्तीन में और हमास के साथ तो हम यहाँ खड़े हैं, तो शायद इसका एक ये जवाब भी था। 7 अक्टूबर को अगर हमास हमला नहीं करता, 7 अक्टूबर को मगरिब से पहले मस्जिद अक्सा को ये शहीद कर देते। इसलिए जंग का आगाज हुआ है। अगर इन्होंने मस्जिद अक्सा को छुआ भी ना तो दुनिया तबाह हो जाए, हमें भी कोई मसला नहीं है। एक बात मैं आपको क्लियर बोलूं, आवाज़ सिर्फ एक होनी चाहिए पूरी दुनिया में, मिस्र से बॉर्डर खोलो, फिर दिखाते जंग क्या होती है। और किसी की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान आराम से बैठ के सुकून से तमाशा देखे, हम काफ़ी हैं इंशाल्लाह। और जिस तरह वहाँ अगर मुहासरा खोलो, इस तरह पाड़ा चनार का भी खोलो, इस दाइश को, इस ISS को निमटने के लिए 15 साल से हम भी यहाँ मैदान में बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर भी वो मारेंगे, क्योंकि मसला अगर वहाँ पे हिजबुल्लाह है तो पाकिस्तान में ISI भी है। एक ही नज़र से देखे जाते हैं आलमी ताकतों के बीच में। इंशाअल्लाह शाना बशाना ये जंग लड़के दिखाएंगे। इस जंग का तीसरा कदम पाकिस्तान है। इस जंग, आलमी जंग का आगाज फलस्तीन से नहीं होना, पाकिस्तान से होना। लेकिन इस जंग में एक और आपका जो मुल्क है वो बहुत तेजी। सबसे बड़ी तकलीफ किसको है इस वक्त इसराइल की दुनिया में? अमेरिका को, इंडिया को। अगली रिसर्च में मैं दूंगा कि उसको असल तकलीफ क्या है, वो क्या कर रहा है, उसके कारनामे क्या हैं। इस वक्त इंडिया के हाई ऑफिशियल, रॉ के एजेंट्स सब इस वक्त वहाँ पे इसराइल में मौजूद हैं जो इन फ़लस्तीनियों से लड़ रहे हैं। वो मैं आपको वजह बताऊंगा कि इनका, और ये भी बताऊं 2 साल में, हमें भिखारी कहता है ना इंडिया, मैं 2 साल में दिखाऊंगा ये हमसे ही भीख मांगता हुआ नजर आएगा। ठीक हो गया, हमने वो भी तैयारी कर ली की जो इस वक्त वो पाड़ा चनार और आज़ाद कश्मीर से एंगेज है। दाइश पाड़ा चनार में एंगेज है, ये आज़ाद कश्मीर में एंगेज है, यहाँ का महाज खुलने वाला है। आप भी जंग की तैयारी करें। तो दोस्तों ये बंदा जो है ये तो लाल टोपी से भी बड़ा गधा मिला है, और मतलब इसको सारा कुछ पता है भाई, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, और भारत क्या कर रहा है, या फिर इजराइल में भारतीय क्या कर रहे हैं। मतलब कि ये बंदा जो बात कर रहा था कि पूरे मुसलमान देश सब चुप बैठ जाएं, बस पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI ही इजराइल को और भारत को दोनों को 72 घंटे में ख़त्म कर देगी। मतलब यार इन लोगों की बातों पे हंसे या रोए समझ में नहीं आता। मुझे तो यार हंसते हंसते आंसू आ गए मेरी आंखों में। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।